Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. ओके पीपल वी विल कंटिन्यू। अरे ये क्या हो गया, ये तो अपना हो गया था ना। ओके, एरोफॉइल क्या होता है भाई साहब? लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। तो एयरक्राफ्ट का ऊपर जाना, ठीक है, ये भी आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड मतलब क्या होता है? गैस एज वेल एज लिक्विड। तो इज एयर अ फ्लूइड? यस इट इज, बिकॉज इट्स अ गैस, ठीक है। ओके, एरोफॉइल इज द नेम गिवन टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट shaped to provide an upward vertical force as it moves horizontally through air. हेलीकॉप्टर होवे या भाई साहब एरोप्लेन, उसके विंग्स होंगे, है ना। ये विंग्स ही उसको ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। और ये किस मैकेनिज्म से होता है? दिस अपवर्ड फोर्स और डायनेमिक लिफ्ट मेक्स एयरप्लेन्स फ्लाई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें भाई साहब होता क्या है, ठीक है। This basically shows cross section of the wings of an aeroplane. Looks like an aerofoil. The wing is so designed that its upper surface is more curved. तो अगर आपने कभी एरोप्लेन का विंग देखा होगा, देखो ऐसे है तो ये ऐसा प्लेन, लेकिन अपर सरफेस का मोटा रहेगा, ठीक है। The wing is so designed that its upper surface is more curved and hence longer than the lower surface. तो अपर सरफेस देखो आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लेन है, प्लेन देखो ऐसा प्लेन है, ये प्लेन की मुंडी है और वो प्लेन का बैक साइड है, ठीक है। और ये उसका क्या कहते हैं, विंग्स है। तो ऐसा है देखो, अपर सरफेस ऐसा ऐसा टाइप का दिखेगा आपको प्लेन, ठीक है। सो ये इस तरह का एयरोफॉइल है। ओके, द विंग इज सो डिजाइंड दैट इट्स अपर सरफेस इज मोर कर्व्ड, ठीक है, एंड हेंस लॉन्गर। तो आपका भाई साहब देखो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, कौन ज्यादा होगा? अपर सरफेस का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, is broader than the rear edge as the aircraft move. जैसे जैसे भाई साहब उड़ान बढ़ती है, ठीक है, air moves faster over the upper surface of the wing than on the bottom. तो upper surface पे ज़्यादा जोर से ये घूमेगा। According to Bernoulli's principle, the air pressure above the upper surface decreases below the air atmospheric pressure. कैसे होगा? देखो जैसे जैसे भाई साहब ये आगे जा रहा है एरोप्लेन, मतलब अभी समझ लो ग्राउंड पे ही है, ठीक है, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा। वो पायलट अनाउंस करता रहता है, देखो वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, सो वी आर गोइंग टू नाउ टेक ऑफ, ठीक है। तो ये स्पीड बढ़ता रहेगा। तो स्पीड जब बढ़ता रहेगा, अपर सरफेस पे ज़्यादा एयर जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। आप देखो ना भाई साहब, नीचे सरफेस पे कम एयर जाएगा ना, ठीक है। व्हेन द विंग इज सो डिजाइन दैट इट्स अपर सरफेस इज मोर कर्व्ड एंड हेंस लॉन्गर देन द लोअर सरफेस एंड द फ्रंट एज इज ब्रॉडर देन द रियर एज। तो फ्रंट एज आपका जो है वो ब्रॉडर है देन द रियर एज। एज द एयरक्राफ्ट मूव द एयर मूव्स फास्टर ओवर द अपर सरफेस। यहाँ पे भाई साहब एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। As the aircraft moves, the air moves faster over the upper surface.
तो अभी देखो बर्नौलीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई साहब, ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है और अगर आपका ये बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा। इसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए आप बोल रहे हैं भाई साहब V की वैल्यू कम हो रही है। अगर V की वैल्यू कम हो रही है, V की वैल्यू कम हो रही है भाई साहब, एज द एयरक्राफ्ट मूव द एयर मूव्स फास्टर ओवर द अपर सरफेस। अगर V की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें भाई साहब ये तो कम नहीं होगा, ये इसको कम होना पड़ेगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले सरफेस में प्रेशर कम और नीचे वाले सरफेस में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द एयर प्रेशर अबव द अर्थ सरफेस डिक्रीज, अबव द upper surface decreases below the atmospheric pressure than on the lower surface increases, and this difference in pressure एक dynamic lift देता है उसको, it basically lifts the airplane। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आंधी तूफान के समय जो गांव खेड़े के छपड़े होते हैं या टिन का शेड होता है उसका उड़ जाना आपने देखा रहेगा, है ना, बहुत टाइम पे ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, वाई वुड दिस हैपन, बोलो बोलो। हाँ, एरोडायनेमिक्स, अरे लंबी लंबी बातें भाई साहब, वो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन हाउ डू यू, तो समझ लो भाई साहब, ये कोई गांव का घर है, ठीक है, ये भाई साहब टिन का शेड है, ठीक है, ये टिन का शेड है, समझ में आ रहा है। ये आंधी तूफान आ रहा है बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से आंधी आ रहा है, ठीक है। जब ये ज़ोर से आंधी आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगी भाई साहब, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड बढ़ गई भाई साहब, है ना। अंदर नहीं बढ़ रहा है, अंदर तो भाई साहब आप क्लोज रूम में हैं, अंदर वही है, अंदर जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल में होता है वैसा ही है। अंदर के खिड़की दरवाजे अगर बंद हैं तो, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब सब लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद ही कर देते हैं आंधी के समय, ये सब बंद है, तो इट्स एज गुड एज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत जोर है, अगर यहाँ पे भाई साहब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इस बर्नौलीज के इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए भाई साहब ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, इस बर्नौली के इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए ये अगर वेलोसिटी बड़ी है तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। इसका मतलब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर प्रेशर कम। लोगों को ये लगता है कि ये टिन का छपड़ा जो उड़ गया है ये आंधी तूफान की वजह से उड़ा है, नहीं, ठीक है, आंधी तूफान की वजह से उड़ा है ये सही है, लेकिन ये बाहर की हवा उसको उड़ा कर लेके नहीं गई है, अंदर की हवा लेकर गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस प्रेशर इज मोर देन दिस प्रेशर, इसलिए ये उड़ा है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी बाहर का हवा इस टिन के छपड़े को उड़ाकर नहीं ले गया है, अंदर का प्रेशर उसको उड़ाकर लेकर गया है। हाँ, बाहर क्या हुआ, आपका वेलोसिटी ऑफ विंड बढ़ा जिसके वजह से इसका प्रेशर कम हो गया, और अंदर तो वैसा ही प्रेशर था, तो अभी क्या होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा इधर प्रेशर कम, ठीक है, ये उड़ जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, और द सेम टेक्निक आपका एरोप्लेन्स में भी है। एरोप्लेन्स भाई साहब ऐसे होता है, ये समझ लो कोई एरोप्लेन है, ये इसका एक विंग है, देखो ऐसा विंग है, तो विंग इसके ऐसे होंगे भाई साहब, ये आपका कोई एरोप्लेन है, इसका विंग ऐसा होगा, इसका विंग ऐसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा, ठीक है, हवा जाएगी और नीचे की तरफ कम, ऊपर की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर कम, और नीचे की तरफ वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज़्यादा, और यही इसको क्या दे रहा है, एक एयर लिफ्ट दे रहा है। इट इज़ बेसिकली गेटिंग अ लिफ्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझ में आता हम पीपलम, ओके ओके। हेलीकॉप्टर में, ये हेलीकॉप्टर है भाई साहब, कितना गंदा डायग्राम बना रहा है, ये घूम रहा है भाई साहब, हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। अब ये हेलीकॉप्टर से क्या हो रहा है भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, ये हवा से कर क्या रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इधर प्रेशर का कुछ नहीं हुआ, इधर तो प्रेशर वैसा ही है, इसको ये एक लिफ्ट देगा ऊपर, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लिफ्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके। सो दीज आर एरोडायनेमिक्स दैट वी आर यूजिंग। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ओहो, इन पर्सन सफरिंग विद एडवांस्ड हार्ट कंडीशन, एडवांस हार्ट कंडीशन मतलब एज के साथ होता है, कभी कभी हेरिडिटरी भी होती है, ठीक है। एडवांस हार्ट कंडीशन मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। द आर्टरी गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक ऑन इट्स इनर वॉल्स। अभी आप इसको समझो, हार्ट अटैक मतलब होता क्या है, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है, और हार्ट से ऐसे आर्टरी जाती है, ठीक है। हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट जस्ट इन केस, हार्ट से आपका देखो ब्लड ही एकमात्र मीडियम है
ट्रांसपोर्ट का मीडियम आपके बॉडी में से ब्लड है। हाउ आर यू? न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है ये, और क्या कैरी करता है? हार्मोन्स भी कैरी करता है ये, और वेस्ट भी कैरी करता है ये। वेस्ट को लेकर जाता है ये किडनी में, वहां से आपका यूरिन फिल्टर आउट हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एकमात्र मीडियम है ये। अभी हार्ट जब पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट इज बीटिंग पंप, तो ये भाई साहब ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी इस चीज को समझिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हार्ट अटैक का रीजन क्या होता है? आपने भाई साहब दबा कर ऑयल वगैरह, घी वगैरह अगर आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिशन होने लगती है। कुछ कुछ बॉडीज में नहीं होती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो दबा के खाते हैं लेकिन एकदम स्लिम एंड ट्रिम है, कुछ नहीं होता उनको भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं होता। दबा के खाते मतलब आप उनका, मेरा एक दोस्त था भाई साहब, वो डोमिनोज का वेज था, वो डोमिनोज का 2 लार्ज पिज़्ज़ा एक बार में खा जाएगा, चीज़ बस्ट, वो भी एक बार में, और मतलब ऐसे ही राजू की तरह ही स्लिम ट्रिम एकदम ऐसे ही, कुछ ऐसा कहाँ जाता है भाई तेरा, ठीक है। और एज के साथ भी उसका कुछ नहीं, वैसे ही है वो अभी भी, ठीक है। तो ये होता है, मेटाबॉलिज्म होती है। लेकिन जनरली आप अगर बहुत ज़्यादा स्वीट या बहुत ज़्यादा ऑयल ये सब अगर आप खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना लगता है, ठीक है। इसको अपन प्लेग बोलते हैं, ठीक है। सो इन पर्सन सफरिंग विथ एडवांस्ड हार्ट कंडीशन द आर्टरी गेट्स कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग ऑन इट्स इनर वॉल्स। ये आर्टरी है। अभी क्या होगा भाई साहब, अभी हार्ट को तो ब्लड पहुंचाना है, शरीर के सारे जितने भी आपके सेल्स हैं, राइट फ्रॉम फुट टू हेड, एवरीबडी शुड रिसीव ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड में आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ओके। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉकेज बढ़ेगा, ठीक है। अभी अगर इसमें से आपको ब्लड पहुंचाना है, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को आपको पहुंचाना है, तो मतलब आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू इंक्रीज, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हार्ट ज़्यादा प्रेशर से पंप करेगा, फिर और प्लेग जमा हुआ और प्रेशर से पंप कर रहा है, और प्लेग जमा हुआ और प्रेशर से कम कर रहा है। एक टाइम आएगा जब ये आर्टरीज झेल नहीं पाएंगी, ठीक है, या हार्ट जो है तो इतना प्रेशर नहीं ले पाएगा, देन हार्ट अटैक होगा, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग ऑन इट्स इनर वॉल्स इन ऑर्डर टू ड्राइव द ब्लड थ्रू दिस कॉन्स्ट्रिक्शन अ ग्रेटर डिमांड इज प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब अभी हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज इन दिस रीजन, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, हार्ट को ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ रही है, तो ज़्यादा एक्टिविटी के लिए आपका ज़्यादा फ्लो, जैसे देखो आप जब स्पोर्ट्स करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, तो होता क्या है, आपके सारे मसल्स में, आप दौड़ रहे होंगे, बैडमिंटन खेल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपके सारे मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज दे आर नाउ एक्टिव। तो हार्ट भी हमारा एक मसल है, व्हेन इट इज पंपिंग द ब्लड, ठीक है, अभी उसको ज़्यादा जोर से ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि आर्टरीज में प्लेग जमा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा जोर से अगर उसको करना है तो उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है। हार्ट का अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो हार्ट को ज़्यादा खून चाहिए, ठीक है। हमारे हर बॉडी में, हमारे हर बॉडी के हर पार्ट को खून चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस वेयर इट विल गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन दिस रीजन वेयर हार्ट फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल द इनसाइड प्रेशर ड्रॉप्स, इनसाइड प्रेशर ड्रॉप्स एंड द आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। जब आर्टरी से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड की वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अभी समझो समझो समझो, ये एक आर्टरी है, ठीक है, हार्ट भाई साहब पंप कर रहा है इसमें से, ऐसे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट। यहाँ पे भाई साहब आपका प्लेग जमा हुआ है, यहाँ पे प्लेग जमा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेग जमा हुआ, यहाँ पे सही है, ठीक है। अभी हार्ट को ब्लड यहाँ तक पहुँचाना है, हार्ट क्या करेगा भाई साहब, वेलोसिटी बढ़ाएगा, ब्लड एक्टिविटी बढ़ाएगा, हार्ट प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। तो भाई साहब वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ तक अगर पहुँचना तो वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ तक पहुँचा तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इधर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि आर्टरीज कोलैप्स कर जाए। आर्टरीज जो होती हैं हमारी वो स्ट्रेचेबल होती हैं, आप देखोगे ऐसे ऐसे होती रहती हैं आपके हार्ट बीट के साथ। ये आर्टरीज ये वाली नहीं होती हैं भाई साहब, आर्टरीज अंदर होती हैं, बहुत अंदर, मतलब डीप डाउन योर बॉडी होती हैं। मालूम है क्यों? वाई आर आर्टरीज लोकेटेड डीप डाउन इन योर बॉडी? मैं यहाँ बायोलॉजी क्लास नहीं ले रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। डीप डाउन योर बॉडी क्यों होती है? क्योंकि आर्टरीज भाई साहब कट जाए ना
तो इंसान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, हार्ट एक बार ऐसा पंप कर रहा है और पूरा ब्लड ऊपर से नीचे तक जा रहा है, पूरा ब्लड। सोचिए कितना भाई साहब पंपिंग और तेज। और तो अगर आर्टरी कट जाती है ना, आर्टरी अगर कट गई कहीं पे, कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, भाई साहब वहाँ से अगर ब्लड फ्लो चालू हो गया ना, इंसान को बचाना मुश्किल है। इनफैक्ट डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं, दे हैव टू बी सुपर कॉशियस। कोई भी गलती से उनसे आर्टरी नहीं कटनी चाहिए। आर्टरी कट गई ना भाई साहब, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बोला था कि इंटर्नशिप के दौरान, इंटर्नशिप मतलब समझते हैं राइट, डॉक्टर्स को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो इंटर्नशिप के दौरान उनकी पोस्टिंग गांव में होती है। क्योंकि अभी देखो गांव खेड़े में कोई भी डॉक्टर जाता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई साहब हम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं अवार्ड करेंगे जब तक आप एक साल तक गांव खेड़े में काम ना करें। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, अब मजबूरन उनको जाना पड़ेगा डिग्री लेने के लिए। तो इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम गांव में थे और कोई एक ऑपरेशन चल रहा था। अभी गांव में लाइट जाती रहती है भाई साहब, तो कैंडल लाइट जलाकर हम ऑपरेशन कर रहे हैं पेशेंट का, और जो हमारे जो मेन डॉक्टर थे उनसे आर्टरी कट गई। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, अभी ये आपको भी समझ में आ रहा है, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो बता रहे थे कि तभी तो मैं ऐसे काँप रहा हूँ भाई साहब, अब क्या करें, क्योंकि आर्टरी कट गई है। मतलब अंधेरे में इंसान ऑपरेशन कर रहा है, क्या करेगा, गांव में भाई साहब बिजली नहीं है, उसमें ऐसे ऑपरेशन हो रहा है। सो दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। द स्पीड ऑफ ब्लड इंक्रीजेज इन दिस रीजन, यहाँ पे भाई साहब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई साहब, प्रेशर डिक्रीज। देखो ये है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो मतलब प्रेशर डिप हो गया। और आर्टरी जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, ऐसे ऐसे होती है, ट्र 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 ऐसा होता रहेगा बस, इलास्टिक वॉल है वो, ठीक है। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा वैसा, ठीक है। इट विल बेसिकली, अगर ये पिचकेगा तो हार्ट के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। पहले तो प्लेट था, इसके लिए भाई साहब ये वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अभी ये भाई साहब आर्टरी पिचक जा रही है, तो अभी और प्रेशर बढ़ रहा है हार्ट के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है कि भाई अभी तो पहले तो हार्ट का जो लड़ाई था वो इस प्लेट से था, अभी कोलैप्सिंग आर्टरी वॉल से है, समझ में आ रहा है ये। अलॉन्ग विथ द प्लेट नाउ द स्ट्रगल इज विद द कोलैप्सिंग आर्टरी वॉल, तो अभी हार्ट के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, उसको और जोर से पंप करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। From Bernoulli's principle, the inside pressure drops and the artery may collapse due to external pressure. The heart exerts further pressure. Now it is combating two things. One, the plaque that is there, and the other one, the collapsing artery wall. Due to Bernoulli's principle, it is collapsing now. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। Due to open artery and forces the blood through. As the blood rushes through the opening, the internal pressure once again drops, leading to a repeat collapse. अभी क्या हो रहा है, हार्ट ने और जोर से प्रेशर डाला, और जोर से वेलोसिटी हुई, और जोर से वेलोसिटी हुई तो प्रेशर और ड्रॉप हुआ, और ड्रॉप हुआ तो भाई साहब फिर से आर्टरी कोलैप्स कर रही है। तो अभी स्ट्रगल किसके किसके बीच में है, हार्ट और आर्टरी के बीच में। ऐसा होता रहेगा कंटिन्यूसली, और फिर हार्ट गिव अप कर देगा भाई साहब, उससे ज़्यादा उसकी मोटर वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वैस्कुलर फ्लटर विच कैन बी हर्ड ऑन अ स्टेथोस्कोप, दिस में रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक। ये भाई साहब होता है हार्ट अटैक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका प्लेक की वजह से, मतलब ये जो कचरा जमा हुआ है उसकी वजह से होता है, और ये यहाँ पे जा रहा है ब्लड। तो पहले तो प्लेक की वजह से वेलोसिटी को बढ़ाने की एक कोशिश है हार्ट की, और जैसे ही वो वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा प्रेशर डिप होएगा और आर्टरी वॉल कोलैप्स होने की कोशिश करेगा। अभी इसको और जोर से डालना पड़ेगा, और जोर से डालना है भाई साहब, तो क्या होगा, फिर से और डिप होगा और ज़्यादा। तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी, और फाइनली एक ऐसा टाइम आ जाएगा हार्ट गिव अप कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स, ठीक है। इट इज़ नॉट एबल टू कॉम्पनसेट, और इट इज़ नॉट एबल टू नॉर्मली फंक्शन नॉर्मली, ठीक है। मैं अपने मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, मेरे पापा का हार्ट ब्लॉकेज था, तो उनका एक ऑपरेशन हुआ था। मतलब पहले के ज़माने में तो सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरीज होती थी, लेकिन आज के साइड में बहुत सारे टेक्निक्स हो गए हैं। तो उनका भी ऐसा ही है, देखो ये प्लेग हुआ था, प्लेग, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने यहाँ से कट किया, और यहाँ से एक मतलब एक वीन से एक ट्यूब डाला, ठीक है। ये ट्यूब कैसे, अभी आज की तारीख में देखो साइंस कैसा है, और उन्होंने मेरे को दिखाया, जब ऑपरेशन हो रहा था मैं बैठा था, मतलब बाहर उन्होंने दिखा रहे थे मेरे को, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये वीन है उनका, देखो ये वीन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये एक ट्यूब है,
और इसमें ऐसा एक्सेप्ट ब्लोटेड है, एक बलून सा लगा हुआ है जिसको उन्होंने अभी तक हवा नहीं भरा है, ठीक है। अभी समझ लो यहाँ पे हार्ट के आजू बाजू में एक वीन में ऐसे प्लेग जमा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से उनके हार्ट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा रहा है, ठीक है। बहुत कॉमन सा डिजीज़ है ये, एज के साथ होता है। तो इन्होंने भाई साहब इसको ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, ये ऐसे ऐसा अंदर जा रहा है भाई साहब, ये अंदर जा रहा, जैसे यहाँ तक पहुँचा इसको इन्होंने ब्लोट कर दिया। ब्लोट किया मतलब फुला दिया, और इसको ऐसे घुमाया ऐसे, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसे घुमाया, ये कचरा साफ़ हो गया, मतलब नाली जैसे साफ़ करते हैं ना वैसा, और फिर उसको निकाल दिया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एंडियोस्कोपी, ठीक है। ये होता है अगर इसको रेगुलरली कराएंगे, और उन्होंने फिर ये किया, कचरा साफ़ किया, लेकिन उन्होंने बोला इनको होगा, फिर से होगा, क्योंकि ये टेंडेंसी बॉडी में हो गई है। तो उन्होंने क्या कर दिया, स्टेन्स बैठा दिए, ऐसे स्टेन्स, ऐसे स्टेन्स होते हैं देखो, मतलब इसको ऐसे ही मेंटेन करना है इनको, ये ऐसे स्टेन्स बैठा दिए वहाँ पे। तो अभी मतलब एक पाइप का शेप देकर एक स्टेन बैठा दिया है, मतलब वो अभी कोलैप्स नहीं कर सकता, वो आर्टरी जो है कोलैप्स नहीं कर सकती, वो स्टिफ रहेगी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पूरा मैंने देखा है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल, ठीक है। तो ये आपका देखो हाई प्रेशर, देखो जैसे ही भाई साहब बहुत ज़ोर से हवाई, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म, ड्यूरिंग द सर्टन विंड स्टॉर्म और साइक्लोन द रूफ ऑफ सम हाउसेज आर ब्लोन ऑफ विदाउट डैमेजिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस, ठीक है। ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन रूफ उड़ गया भाई साहब। क्यों उड़ गया? द हाई विंड ब्लोइंग ओवर द रूफ क्रिएट्स अ लो प्रेशर, यहाँ पे भाई साहब एक लो प्रेशर रीजन हो जाता है। In accordance with Bernoulli's principle, the pressure P1 below the roof is equal to the atmospheric pressure which is larger than P2, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब प्रेशर आता है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये नॉर्मल प्रेशर है, क्योंकि घर के खिड़की दरवाजे बंद हैं। ऊपर जो प्रेशर है भाई साहब वो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो प्रेशर को कम करेगा। तो हमारी जो ये धारणा है कि भाई साहब बहुत ज़ोर से आंधी आई और इसको उड़ा कर लेके गई, ये गलत है। ये उड़ा आंधी तूफान की वजह से नहीं, ये उड़ा अंदर के प्रेशर की वजह से, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर घर के खिड़की दरवाजे खुले रख दो तो क्या ये रूफ उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब ये आंधी तूफान के टाइम पे कोई भी बंद ही करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको खुला रख दोगे तो इसके उड़ने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। इस छपड़े के उड़ने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आंधी तूफान का असर अंदर तक जाएगा, वहाँ पे भी भाई साहब वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर और कैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इधर एक दरवाजा है इधर एक दरवाजा है, वैसे सिचुएशन में मतलब जो हवा आई वो निकल गई, ठीक है, तो वेलोसिटी को बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि भाई साहब इधर दीवार है तो हवा के यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगी, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इधर एक दरवाजा है तो इधर भी एक दरवाजा हो, अगर ऐसा सिचुएशन है और दोनों दरवाजे को आपने खुले रखे हैं तो आपका छप्पड़ जो है वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर ऐसा छप्पड़ है तो वो नहीं उड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। upward and is lifted up, once the roof is lifted up it is blown with the wind। तो ये होता है, कई बार ऐसा हुआ है। ओके, सो अभी तक हमने भाई साहब जो चीज़ें पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। बर्नौलीज इक्वेशन है भाई साहब आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है ये। इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इसको अपन बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, अलग अलग तरीके हैं भाई साहब। इसको अपन बोलते हैं प्रेशर हेड, दिस इज नोन एज प्रेशर हेड, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल हेड, एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी हेड, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं, ओके। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ वेंचुरी मीटर, ये आपने भाई साहब उस दिन हमने देखा इसको। Torricelli's theorem, velocity of efflux of a liquid through an orifice at a depth h from the liquid is equal to √2gh, ठीक है। चलिए फटाफट से कुछ सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। Water flows through a horizontal pipe of varying cross sectional area, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, at the rate of 10 cubic meter per minute, 10 cubic meter per minute, determine the velocity of water at a point where the radius of pipe is 10 centimeter, ठीक है। तो Q क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, 10 मीटर क्यूबिक, और टाइम कितना है भाई साहब आपका 60 सेकेंड्स पर यूनिट टाइम ना भाई साहब। आपको यहाँ पे दिया हुआ है वाटर फ्लोज 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट, इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे टाइम 1 मिनट को आपने 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, और ये 10 मीटर क्यूबिक, सो दिस विल बी हाउ मच, 1/6 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई साहब, रेडियस, ठीक है, रेडियस इज 0.10 सेंटीमीटर, मतलब
एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ द पाइप इज दिस मच। अभी Q की वैल्यू क्या होती है, A इंटू वी। A मतलब हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और V मतलब हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर है ना, देखो इस तरीके का है। ठीक है, तो लेंथ आपको क्या दे देगा, लेंथ आपको मिल जाएगा किससे, वेलोसिटी से, और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो Q मतलब होता क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम का भाई साहब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई टी, है ना। पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, एरिया, और एच बाई टी क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ अपॉन टी, दैट विल बी वेलोसिटी। इस तरह से Q इज इक्वल टू ए इंटू वी होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये फिर से देखो, एक पाइप है भाई साहब, ठीक है, एक पाइप है, उसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। पाइप का लेट्स से रेडियस दिया हुआ है आपको r। अभी मुझे अगर Q दैट इज रेट ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो हम पढ़ चुके हैं इसको, बट स्टिल अगेन ये आपका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना भाई साहब। Q विल बी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम क्या होता है, एक सिलेंडर में कितना वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन टाइम। Q की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन टाइम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। पाई आर स्क्वायर मतलब कितना होगा, A, पाई आर स्क्वायर मतलब हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच बाई टी। ये एच बाई टी बेसिकली क्या है, देखो ये आपका लेंथ है अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब A इंटू वी, सिंपल। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, A इंटू वी। नाउ व्हाट इज Q, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है ये, ओके। तो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको भाई साहब, पाई आर स्क्वायर वी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन को यह मालूम है क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो इसको Q 1/7 दैट विल बी हाउ मच, 5.303 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। Water flows through a horizontal pipe whose internal diameter is 2 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at a speed of 4 meter per second? ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.02 मीटर। वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, 4 मीटर पर सेकेंड। D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप अप्लाई करते हैं तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P D1 का स्क्वायर बाई 4 इंटू V1। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई D2 का स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ रहा है। ठीक है, तो D2 का स्क्वायर हो गया V1 बाई, समझ में आ रहा है। देखो आप R नहीं ले रहे हो, अगर आप R लेते तो पाई आर स्क्वायर होता था, अगर आप D ले रहे हो, देखो पाई आर स्क्वायर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, पाई। अगर मेरे को D लेना है, D क्या होता है, R इज इक्वल टू D बाई 2 होता है ना। तो अपन यहाँ पे R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, D बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट विल बी हाउ मच, पाई D स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, तो आप पाई आर स्क्वायर लिखो या पाई D स्क्वायर बाई 4, इट विल मीन एरिया ओनली। ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो पाई D1 स्क्वायर आपने A1 का एरिया लिखा, वेलोसिटी, पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू वेलोसिटी। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V, तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो आपका भाई साहब हो गया V1 बाई V2 इंटू D1 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 0.01। क्लियर है, तो 1/4 इंटू 0.0004। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब, 0.004 यही तो होगा, V1 बाई V2। हाँ ठीक है भाई साहब, 0.00001 है ना। ठीक है, ये 1/4 तो इतना होता है भाई साहब, 0.02 का स्क्वायर तो 0.04 ही होगा। सब गलत आ रहा है आंसर यहाँ पे। ओके, एट वॉट स्पीड विद द वेलोसिटी हेड ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी। अभी देखो आपका प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ठीक है, और ग्रेविटेशनल हेड, 3 चीजें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौली का इक्वेशन तो अभी तक हमको याद हो गया होगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है,
अभी उसी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो P बाई रो जी एच प्लस वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर हो गया, दैट विल बी कांस्टेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, P बाई रो को बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, क्योंकि आपका mgh यहाँ से निकल चुका है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। ये टर्म्स को याद रखिए, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पे आपने किससे डिवाइड कर दिया भाई साहब, रो जी से डिवाइड किया है, तो रो जी से डिवाइड किया तो यहाँ पे रो और जी भी चला गया, एच बचेगा, ठीक है। अभी इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ग्रेविटेशनल हेड, और इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल सॉरी वेलोसिटी हेड, ठीक है। चले P प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अगर अपन ने इसको डिवाइड किया किससे, रो से, क्योंकि रो आपका कांस्टेंट है। आप सिर्फ कांस्टेंट के टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इधर भी कांस्टेंट आना चाहिए ना। अगर कोई लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, हाइट वेरी कर सकता है, वेलोसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब दोनों तरफ आप रो से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर भी आपको कांस्टेंट ही आएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को उठा के तो आप उस पूरे टर्म में देखो क्या क्या कांस्टेंट है, टेल मी। दिस रो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी विच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही दो चीजें कांस्टेंट है। बाकी आपकी हाइट वेरी कर सकती है, भाई साहब पाइप इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, और वेलोसिटी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रो बाई प्रेशर बाई रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज पोटेंशियल नहीं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, एंड दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। इसी चीज को अगर हम रो जी से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बोलो, प्रेशर अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड, दिस इज प्रेशर हेड, ये हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया आपका वेलोसिटी हेड, दिस इज वेलोसिटी हेड, एंड दिस इज व्हाट, ग्रेविटेशनल हेड, दिस इज ग्रेविटेशनल हेड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो इस सवाल में देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा गया है, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी, आपका भाई साहब 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे एच दिया हुआ है, कितना है, सॉरी वेलोसिटी हेड ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी 40, ओके, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है, 98 सेंटीमीटर, या तो इसको भाई साहब मीटर पे कन्वर्ट कर लो और इसको भाई साहब 9.80 रहने दो, तो आपका एच वेलोसिटी हेड कितना होता है, वी स्क्वायर बाई 2g होती है, ठीक है। वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, तो आपका v कितना हो जाएगा, √2gh, दैट इज 280 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप मीटर पर सेकेंड में भी ला सकते हैं। एट वॉट स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम का प्रेशर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, ठीक है, इंटू जी, ये करेंगे आप, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विल बी 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी हेड आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो 20 इंटू 13, एट वॉट स्पीड विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू दैट ऑफ मर्करी कॉलम, 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, तो आपका वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 20 इंटू 13.6, तो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1000, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 इंटू 1000 कैसे हुआ ये, क्योंकि 13.6 का इधर आपने लिया हुआ है 1000, तो v की वैल्यू हो गई, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, calculate the total energy possessed by 1 kg of water at a point where the pressure is 2 gf per millimeter square, velocity is 0.1 meter per second, and the height is 50 centimeter above the ground level, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे कितना है भाई साहब, आपका 20 gf पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 20 बाई 1000 हो गया gf, ग्राम फोर्स है ये,
GF मतलब ग्राम फोर्स, KGF मतलब किलोग्राम फोर्स। तो ग्राम फोर्स को आप पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, kg में, ठीक है, ये KGF हो गया, ठीक है। और मिलीमीटर स्क्वायर को आपने किस में कन्वर्ट किया भाई साहब, मीटर में, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका हो गया भाई साहब 10⁻³ इंटू -2 kg पर kg फोर्स है पर मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको, 20 ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर का स्क्वायर, पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अपन इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे कैसे, 1000, ठीक है। और मिलीमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1/10⁻³ इसका स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर करोगे इसको तो कितना आएगा, 20/1000 इंटू ऊपर कितना आ गया बोलो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये टड़ंग 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 टड़ंग। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच, और ये हो गया 2 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया भाई साहब। और ये हो गया kg फोर्स, 1 दिस विल बी kg फोर्स। तो ये हो गया आपका 8000 इंटू 9.8, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 19.6। दैट विल बी हाउ मच, 19.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेशर। समझ में आ रहा है कैसे ग्राम फोर्स को आपने प्रेशर में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके। v की वैल्यू क्या दी हुई है, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, जिसको आपने बाकायदा मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो प्रेशर एनर्जी पर kg ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आपने पूछा यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर kg हो गया आपका P/ρ, ठीक है, P/ρ तो आपका गया 196। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर kg इतना आ गया, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी पर kg, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो सारी चीजें नहीं दी हुई हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बर्नौलीज थ्योरम को आप अलग अलग तरीकों से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीकों से यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, ओके। प्रेशर बाय डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है भाई साहब 1 kg एट, ओके। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 kg। तो प्रेशर एनर्जी पर kg निकालना है, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो प्रेशर एनर्जी पर kg पर यूनिट मास दैट इज 196 जूल्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा पर kg, दैट इज दिस, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ v², ये हो गया भाई साहब। सो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय पर kg ऑफ वाटर, दिस विल बी द टोटल एनर्जी दैट इज पोजेस्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम ही है, थोड़ा ट्विस्ट एंड ट्विक करके, ओके। द रीडिंग ऑफ प्रेशर अटैच्ड विद अ क्लोज पाइप इज हाउ मच, 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द वॉल ऑफ द पाइप द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज रिड्यूस टू दिस मच। पाइप का वॉल आपने ओपन कर दिया, क्यों ऐसा होगा, आपके बिल्डिंग में क्या होता है, देखो ये समझ लो तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर टंकी है, ठीक है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है। अभी वॉचमैन ने क्या किया रहेगा, पानी भर के रखा है, ठीक है। पानी जब वो छोड़ेगा तो वॉल को खोलेगा, और जब वॉल को खोलेगा तो ये बोला जा रहा है कि पहले यहाँ पे प्रेशर है, तो ये बोला जाता है रीडिंग ऑफ द प्रेशर अटैच्ड विद अ क्लोज्ड पाइप, मतलब वॉल जब बंद है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब आपने वॉल को खोल दिया है तो प्रेशर कितना हो गया, 3.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इतना हो गया। क्यों ऐसा हुआ रहेगा, हाँ, पानी का फ्लो मतलब वेलोसिटी बढ़ी ना। इसीलिए देखो जितने भी आपके पाइप टूटते हैं ना, या पाइप लीकेज होता है, वो तभी होता है जब वॉल बंद हो। वॉल जैसे ही आप खोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वॉल के खोलने से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब वॉल बंद था तो प्रेशर कितना था, 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आपने वॉल को चालू किया, वेलोसिटी ढप से नीचे गिरी, तो यहाँ पे आपका प्रेशर, सॉरी वेलोसिटी बढ़ा और प्रेशर आपका नीचे गिर गया बाय बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, ठीक है। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर P1 इज दिस मच, प्रेशर P2 इतना है भाई साहब। तो अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो पाइप है ना, यहाँ पे देखो पाइप है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे कोई वॉल्व है, ये वॉल्व है, ठीक है। वॉल्व जब आपने बंद रखा था तो प्रेशर कितना था, तो वॉल्व जब आपने बंद रखा है प्रेशर कितना है, तो आप बर्नौली के थ्योरम को लगाइए, P1 प्लस
P1 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो G H1, है ना, ये हो गया आपका V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन जिसके बर्नौली का थ्योरम ये है, और ये आपका दूसरा कंडीशन। इसमें क्या हो जाएगा बोलो, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। आर बी क्लियर? ठीक है, मुझे बताओ इसका हाइट और इसका हाइट क्या सेम है? सेम है भाई साहब। तो ये रो GH1 और ये रो GH2 दोनों भी सेम होंगे, क्योंकि आपका H1 और H2 यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो कैंसिल हो गया इधर ही। ठीक है, मुझे बताओ V1 का क्या वैल्यू होगा? हाँ, होएगा ही नहीं ना वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू? ठीक है, ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो यार, इधर क्या किया है, आपका फ्लो नहीं हो रहा है ना, बंद है ना ये, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नहीं, जीरो होगी, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर, दैट विल बी ट्वाइस P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो अपन V2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2 दैट इज 3.5 माइनस 3, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है, अपॉन रो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर मीटर क्यूबिक होता है भाई साहब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 रेज टू 3। ठीक है, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 2.5 0.5 इंटू 2 हो गया 1, और यहाँ पे 10 रेज टू 5 है, ये हो गया 10 रेज टू 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? शाबाश। ठीक है, चलो भाई साहब इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए ना भाई साहब, चलो 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 फटाफट अटेम्प्ट करो जरा। हो गया, डन डन डन।
ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं। फॉर द बोइंग एयरक्राफ्ट इन लेवल फ्लाइट, अगर लेवल फ्लाइट मतलब ऐसे जा रही, देखो ऐसे जा रही लेवल फ्लाइट, मतलब इसका क्या है, अपवर्ड प्रेशर और लोअर प्रेशर दोनों सेम रहेगा, ठीक है। फॉर द बोइंग एयरक्राफ्ट इन लेवल फ्लाइट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द क्राफ्ट। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा, ये आपका भाई साहब फ्लाइट है, यहाँ पे प्रेशर आपका लेट से ये आपका P है, लेट से P और P डैश है, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर इन द लोअर साइड विल बी मोर, तो आपका प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, P माइनस P डैश, दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और ये प्रेशर डिफरेंस किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बैलेंसिंग, तभी जाकर ये लेवल फ्लाइट में रहेगा, ठीक है। सो फॉर द बोइंग एयरक्राफ्ट इन लेवल फ्लाइट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये अपवर्ड फोर्स जो होगा, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, देखो कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। ऊपर वाले का आपने देखा भाई साहब वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर नीचे वाले का ज़्यादा होगा ना भाई साहब, ठीक है। प्रेशर आपका नीचे वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर ये आपका भाई साहब P डैश है, ठीक है। तो P डैश माइनस P, ये तो आपका प्रेशर डिफरेंस है ना, प्रेशर नीचे वाले का ज़्यादा हो रहा है तभी तो जाकर वो ऊपर, इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर डिफरेंस दैट इज P डैश माइनस P इनटू एरिया, दिस विल बी द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड दिस हैज टू बैलेंस इट्स वेट डाउनवर्ड्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। P डैश माइनस P इज द प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, दिस विल बैलेंस द वेट ऑफ द प्लेन एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज mg। क्लियर है, ओके। अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे फॉर द बॉय, तो ये आपका भाई साहब P डैश माइनस P को हमने लेट से ले लिया डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा P इनटू A दैट इज गोइंग टू मैनेज M इनटू G, ठीक है। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, M इंटू G बाई A। अभी आप यहाँ पे वैल्यूज डालिए, M यहाँ पे कितना है भाई साहब 3.3 इंटू 10⁵ kg, ये उसका वेट है, ठीक है। और G की वैल्यू 9.8 अपॉन एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है आपका 500 मीटर स्क्वायर, तो इसको अपन ने किया तो कितना आ रहा है भाई साहब आपका 6.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दिस इज बेसिकली द प्रेशर डिफरेंस, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम प्रेशर एंड द अपर प्रेशर। क्लियर है। जब लेवल फ्लाइट पे है कोई भी एयरक्राफ्ट, तो उसके नीचे और ऊपर के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वेट, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा and this force will be equal to the pressure difference that is delta P into area and that will be equal to the weight which is balancing downwards, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, इस पे क्या पूछा है, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सर्फेसेस ऑफ द विंग्स। तो लोअर एंड अपर सर्फेसेस ऑफ द विंग्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमने क्या ही कैलकुलेट किया है, 6.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। नाउ एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर on the upper face of the wing relative to the lower face, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर। तो आप भाई साहब यहाँ पे बर्नौली के थ्योरम को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट तो दोनों में सेम है ना। देखो आप यहाँ पे बोलोगे इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे छोड़ो, उतना तो मतलब मैनेज होता है, ठीक है। तो अगर बर्नौली का थ्योरम लगाते हैं हम, P1 प्लस हाफ रो इज़ व्हाट, डेंसिटी ऑफ एयर, V1 का स्क्वायर ऊपर या नीचे हिस्सा प्लस रो GH, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। ये दोनों भाई साहब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसके और इसके बीच में क्या ही हाइट का डिफरेंस ले लोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं, अगर हमने ये लिखा तो आपका रो 1 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, रो को आपने बाहर निकाला, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा P, डेल्टा P की वैल्यू हो जाएगी हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया, हाफ रो V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1, दैट विल बी डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा P।
ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका, तो डेल्टा पी की वैल्यू हो गई है, तो ये हो गया आपका रो V2 माइनस V1, ठीक है, और ये हो गया आपका V2 प्लस V1, ठीक है, समझ में आता पीपल हम? V2 माइनस V1, ओके, ठीक है, ओके, तो आपका ये डेल्टा पी क्या हो गया बोलो, डेल्टा पी हो गया आपका हाफ रो, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे V2 प्लस V1, और यहाँ पे हो गया आपका V2 माइनस V1, सो दिस विल बी रो V2 प्लस V1 अपॉन 2, और ये हो गया आपका V2 माइनस V1। अभी ये जो V2 प्लस V1 अपॉन 2 होता है, ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी रो इनटू एवरेज वेलोसिटी टू V2 माइनस V1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब होता क्या है, V1 प्लस V2, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एवरेज वेलोसिटी हैज इट इज लेवल इन फ्लाइट एंड विद द स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर्स पर आवर है, 96 किलोमीटर्स पर आवर है, तो ये आपका 960 किलोमीटर्स पर आवर है, तो ये आपको दिया हुआ है भाई साहब, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, रो की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू हमको मालूम है, अपने को भाई साहब V2 माइनस V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका डेल्टा पी इज बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जो अपन निकाल चुके हैं, 6.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, ओके, दैट इज इक्वल टू रो V2 प्लस V1 अपॉन 2, इसका वैल्यू कितना है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है आपका बोलो, V2 माइनस V1, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो इंटू एवरेज वेलोसिटी एवरेज, ठीक है, तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁻3, रो की वैल्यू कितनी है 10⁻3, वेलोसिटी एवरेज कितनी हो गई भाई साहब आपकी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी हियर, एवरेज वेलोसिटी भाई साहब आपकी है 960, है ना, 960 को भाई साहब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, किलोमीटर पर आवर को आप कैसे कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका है 960 किलोमीटर्स पर आवर, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट विल बी 960 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, दैट्स गोइंग टू गिव यू 267 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सो दैट विल बी 267 का स्क्वायर, so that's going to be how much, 0.08, that's 8%, ठीक है, there's a speed of air on the upper surface of the wing is about 8% higher than below the surface, clear है, are we clear on this one people? Okay, thank you so much for your valuable time.